So we were talking about how to find an equivalent load that would represent variable load in a cycle. So how to find out the equivalent load for that cycle, which will be the result of the axial and the radial load for each instant, each level of load in that instant, and then we will uh, find out the equivalent load. So we already discussed this, that the damage caused by the individual load levels should be equal to the damage caused by the equivalent load, right? So now what I was saying is that what is Fi? Fi is basically the friction. If we look at this equation, your Fi, Fi will be equal to Li divided by the sum of let's say if I am very specific, so L1, if I'm saying this is 1, so F1 will be equal to L1 over L1 plus L2 plus L3. That's it, machine, right? Are you guys with me? L3. Sorry for the bad handwriting. I'm writing with a mouse and it is not cooperating. ठीक है जी. तो अच्छा, what will be F2? That will be L2 over L1 plus L2 plus L3. ठीक है जी. So this is basically the fraction of the amount of time. It is the ratio of the amount of time जिसमें वो force जो है वो उतना रहता है to the amount of time for the whole cycle. ठीक है जी. So we can write either this equation as this, or we can say that F equivalent is equal to NITI. Now what is NITI? This is the number of revolutions multiplied by the time. So it is again summing up to this. ठीक है जी. हमने कहा था ना, we can either express it in revolutions or we can either express it in time. So number of revolutions multiplied by time, your time will cancel and your revolutions will be left. ठीक है जी. तो इस तरह भी लिख सकते हैं. अच्छा, अब देखिए, again I am going to introduce that term application factor, and that application factor might be different for each level of force. तो उसमें हम AF भी लिख देते हैं with the equivalent load for that. तो that is not a problem, we already know. ठीक है जी. एक में शायद लोड एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो, दूसरे में शायद लोड इम्पैक्ट पे इस्तेमाल हो रहा हो. ठीक है जी. तो we can write this equation as this one. ठीक है जी. और further we can also say कि हमारा जो F equivalent है to the power A is equal to L equivalent, FEA L1 plus FEA L2 L2 plus FEA 3 to the power A L3. Yeah, we can also write K. ठीक है जी. K हमारे पास जो है it will remain the same. जैसे अभी हमने कहा कि FEA, ये जो अभी हमने वहां पे पहला इक्वेशन लिखा था वो इसी तरह ही था. We can also find the value of this K. ठीक है जी. तो by representing this, and again Li over Li is equal to 1. ठीक है जी. It will sum up to 1 के. अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं, और वो ये है, वो तो बड़ा आसान था ना, कि देखिए हम और भी इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर करते हैं. हम ये कह रहे थे कि देखें, ये हमारे पास लोड और ये टाइम है. तो एक टाइम में हमारे पास लोड जो है that is this one. ठीक है जी. Then it changes to this level, then it might change to another level, it might change into another level. इस तरह हमने किया ना. लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं, अगर ऐसा हो कि वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो, किसी चीज का फंक्शन हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो इट इज नॉट फॉर एन इंस्टेंस, इट इज चेंजिंग, इट इज अ कर्व. ठीक है जी. तो ये रिपीट हो रहा है ऐसे ऐसे.
ठीक है जी, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इट्स जस्ट मैथमेटिक्स के हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू से कि लेट्स से इसकी वजह से जो एक छोटा सा डैमेज जो हो रहा है ना, लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल, यानी अगर हम इंजन की रोटेशन की बात कर रहे हैं तो दिस इज थीटा, तो हम वी आर टेकिंग डी थीटा, ठीक है जी। अगर हम डी थीटा ले लें तो द वेरी स्मॉल जो ये यहाँ पे, can we say the small damage that would be caused, that will be dd, and that will be equal to f to the power a times d theta, ठीक है जी। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, d is equal to integration of this dd, and let's put that over here, तो f to the power a d theta from 0 to phi, if this is the cycle and that goes from 0 to phi, ठीक है जी। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो we integrated that and we will find our, ये हमारा क्या होगा, this will be the f equivalent now, f equivalent to the power a phi, इसमें आप f equivalent is equal to अगर हम इंटीग्रेशन साइन से इसको बाहर निकालें, ठीक है जी, 1/5 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है जी, f to the power a d theta, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गया, ठीक है जी, फ्रॉम इंटीग्रेशन। एंड नाउ वी कैन आल्सो पुट दीज लिमिट्स, हमें पता हो तो वी कैन पुट दीज लिमिट्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस f इक्विवेलेंट, ठीक है जी। लेट्स से हम यहाँ पे एक ये इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, दिस इज एग्जाम्पल 11-6, वो क्या कह रहा है कि लेट्स से कि इन बल्कि इससे पहले I would want to do something else, let's see, look at this problem, ठीक है जी। now what does this say कि there is a ball bearing, ठीक है जी, a ball bearing is run at 4 precise continuous steady loads as shown in the following table, तो 4 का वहां पे हमने 3 लिए थे ना, तो ठीक है जी। तो वो कहता है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 5, कॉलम 8 आर गिवन, तो ये हमें दिए गए हैं, ठीक है जी। कौन कौन से दिए गए हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूं, दिस वन इज गिवन to us, this one is given to us, fifth is given to us and eighth is given to us, ये हमें दिए गए हैं, रेस्ट ऑफ देम हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है जी। तो हम उसकी बात करते हैं, देखिए वो कहता है कि 0.1 सेकंड के लिए लेट्स से फोर्स जो है टाइम फ्रैक्शन, ठीक है जी, स्पीड्स आर दीज, ठीक है जी। तो इन दोनों को जरब दिया गया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, रेवोल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमने कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह टर्न्स इन फ्रैक्शन, ये वही L1 ओवर L1 प्लस L2 प्लस L3, तो ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास 5th कॉलम जो है ये हमें रेडियल, ठीक है जी, रेडियल लोड्स दिए गए हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, F A एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, तो इससे हम इक्विवेलेंट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट के लोड के लिए फार्मूला है ना, एफ ई इज इक्वल टू वही एक्स आई, ठीक है जी, प्लस वाई आई समथिंग, ठीक है जी, तो उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन फैक्टर है, ये भी हमें दिया गया है। और इसी तरह ये हमने क्या किया, इसको और इसको हमने 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके 9 फाइंड आउट किया है, विच इज ए आई एफ ई आई, एफ आई एफ ई आई, ठीक है जी। तो देखें ये कैलकुलेशंस जब हमने कर ली, कैन वी गो अहेड एंड फाइंड आवर इक्विवेलेंट लोड, यस वी कैन गो अहेड एंड फाइंड आवर इक्विवेलेंट लोड। वो हमारे पास जो अभी हमने मतलब ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 3, ठीक है जी, एंड वी हैव द इक्विवेलेंट लोड्स नाउ, तो वी कैन गो अहेड एंड फाइंड आवर इक्विवेलेंट लोड फॉर ऑल दीज 1 2 3 4 इंस्टेंसेस, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास 884 आता है, ठीक है जी। सो दिस इज टू फाइंड द इक्विवेलेंट लोड, हम कैसे मालूम करते हैं। अब ये इक्विवेलेंट लोड हमारे पास क्या होगा, चले कोई बताए,
What will be this equivalent load for us from design point of view? F. So to win. FD. Yes, this is our FD now. तो जब हम bearing select करेंगे तो हम उसमें ये FD इस्तेमाल करेंगे. ठीक है जी. अच्छा. Now let's see something else. और वो ये है कि let's say हमारे पास ये एक example है, that is 11-6. And what does it say? It says that the operation of a particular rotary pump involves a power demand of P. ये power demand है हमारे पास. P bar जो है, this is the average power plus उसमें कुछ जो है fluctuation होती है, उसमें कुछ variation है, A dash. ठीक है जी. Sin theta, A dash sin theta. ठीक है जी. द बियरिंग फील्स द सेम वेरिएशन. अब बियरिंग पे भी वेरिएशन आ रही है. वो क्या? वो फोर्स या लोड के टर्म्स में. लोड इज इक्वल टू, एक तो उस पे एवरेज लोड है लेकिन ए साइन थीटा उसमें चेंज आ रही है. ठीक है जी. तो वो कहता है डेवलप एन इक्वेशन फॉर एप्लीकेशन फैक्टर. तो ए एफ वो कहता है मालूम करें. सबसे पहले तो हम एफ इक्विवेलेंट से यही मालूम कर सकते हैं. तो एफ इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है? 1, हमने अभी इक्वेशन डिराइव किया ना इंटीग्रेशन करके. तो 1/5 इस तरह था ना, 1/5 टाइम्स 0 to 5 द 5 का ना, 0 to 5 टाइम्स एफ ए टू डी थीटा. तो एफ हमारे पास है ना, वी ऑलरेडी हैव एफ. तो एफ की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं. गो अहेड एंड इंटीग्रेट दैट. ठीक है जी. और इसमें लिमिट्स डालें 0 to 2 पाई, दैट इज 1 रिवोल्यूशन. ठीक है जी. तो अगर हम वो डालते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टर्म्स के साथ, इस एफ इक्विवेलेंट के साथ हमारे पास ए एफ भी होगा ना. ठीक है जी. तो वो ए एफ क्या है? जब हम यहां से लोड का टर्म निकाल लें, ये एफ बार, दिस इज आवर एवरेज. ठीक है जी. इसको हम निकाल लें, बाकी जो बचता है हम इसको एप्लीकेशन फैक्टर कह देते हैं. चले, इसको हम ए एफ कह देते हैं. ठीक है जी. तो इससे ये आइसोलेट कर लें एफ बार. ठीक है जी. ये एफ बार and the rest of it is your application factor. वो कहता है develop an application factor AF for this application of ball bearing. ठीक है जी. Any question? Any question? No. अच्छा, इसी एग्जाम्पल को, ये एप्लीकेशन फैक्टर हमारे पास आ गया. तो वी कैन रिप्रेजेंट कि इसमें वैल्यूज डालें आप. ए और एफ अगर आप डिफाइन कर लें कि ये 0 है अगर, तो इसके लिए एप्लीकेशन फैक्टर 1 आएगा. अगर ये 0.2 है, यू कैन डू दिस इन एक्सेल फॉर 1000 ऑफ वैल्यू, मतलब जितने भी वैल्यूज हैं. दिस इज जस्ट शोइंग यू कि ये एप्लीकेशन फैक्टर होगा उसके लिए. ठीक है जी. अच्छा, नाउ वी नो, जो अभी तक हमने चीजें की ना, those were for बॉल बेयरिंग्स. ठीक है जी. बॉल बेयरिंग्स में हमने क्या किया? लेट मी लिस्ट दैट. सबसे पहले हमने कहा कि लोड, लाइफ, फिर हमने कहा रिलायबिलिटी. इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है. ठीक है जी. हमने वो रिलेशनशिप डेवलप किया. एफ डी की बात की, C10 की बात की, L10 की बात की, LD की बात की, फिर हमने XD की बात की, फिर वेबल पैरामीटर्स की बात की. फिर हमने कहा यार ये लोड जो है ना FD, ये इतनी आसानी से शायद हमें ना मिले कि कांस्टेंट हो, जरूरी तो नहीं है. तो वेरिएबल स्पीड के लिए हमने फिर चीजें शुरू की. इक्विवेलेंट लोड के लिए हमने, ठीक है जी, तो रेडियल इक्विवेलेंट रेडियल हमने मालूम किया. फिर हमने क्या किया कि वेरिएबल लोड के लिए भी फाइंड आउट किया. ठीक है जी. और उसमें ये एक इंटीग्रेशन का भी एग्जांपल हमने किया. अब हम क्या करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास काफी है एक बियरिंग के डिजाइन करने के लिए, बॉल बियरिंग के डिजाइन करने. हेलो. हेलो. सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही.
Hello. अच्छा जी, लेट मी टेल यू कि देखिए when we select a bearing we first look at the load, ठीक है जी, and the selection of bearing is कि what type of load do you have, ठीक है जी। अगर आपके पास सिर्फ रेडियल लोड है और तो अगर सिर्फ रेडियल लोड है और बल्कि आई वुड से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास रेडियल लोड है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेडियल लोड है और थोड़ा सा एक्सियल लोड है या थ्रस्ट लोड है, तो अ बॉल बियरिंग कैन टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है जी। बॉल बियरिंग जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन इट विल टेक सम रेडियल लोड, ठीक है जी। अगर आपके पास रेडियल लोड ज्यादा है और आपके पास कोई एक्सियल लोड नहीं है, तो देन रोलर बियरिंग इज गोइंग टू बी योर चॉइस, ठीक है जी। क्योंकि रोलर बियरिंग जो है दैट कैन टेक मोर लोड देन अ बॉल बियरिंग, ठीक है जी। लेकिन ये जो रोलर बियरिंग है इट विल बी अ स्ट्रेट रोलर बियरिंग। स्ट्रेट रोलर बियरिंग में हमारे पास बियरिंग्स जो रोलर्स हैं दे विल बी स्ट्रेट, ठीक है जी। तो एक स्ट्रेट रोलर बियरिंग कैन टेक केयर ऑफ अ गुड अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियल लोड्स बट नो एक्सियल लोड। अगर आप इस पे एक्सियल लोड डालेंगे ना तो ये निकल जाएगा, इट इज गोइंग टू द केज एंड वो कोन और कप आपस में जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इट कैन नॉट टेक एक्सियल लोड, थोड़ा बहुत ले सकता है लेकिन वी विल कॉल दैट ऑलमोस्ट नॉन, ठीक है जी। अच्छा, बॉल बेयरिंग जैसे अभी मैंने कहा सिग्निफिकेंट अमाउंट मॉडरेट लोड ले सकता है और स्मॉल एक्सियल लोड ले सकता है, लेकिन लेट से अगर आपके पास ये लोड भी ज्यादा हो, लार्ज रेडियल लोड्स हो और लार्ज एक्सियल लोड्स हो, तो फिर हम कौन से बेयरिंग इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज टेपर्ड रोलर बियरिंग्स, ठीक है जी। तो टेपर्ड रोलर बियरिंग्स हम इस्तेमाल करेंगे और टेपर्ड रोलर बियरिंग्स जो है दे कैन टेक सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब एक्चुअली हेवी लोड्स, रेडियल लोड्स एंड एक्सियल लोड्स। और टिमकन जो है इन्होंने सबसे पहले जो है इन बियरिंग्स को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने ये टेपर्ड रोलर बियरिंग्स जो है ये बनाई। अभी तक हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो हमने बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। रोलर बियरिंग में उसके जो सिर्फ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, ए उसका मुख्तलिफ है, मतलब ए के लिए 3 था, रोलर के लिए दैट वाज 10/3, ठीक है जी। तो इस किस्म की चीजें हैं, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट वही चीज है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ लेट्स सी टेपर्ड रोलर बेयरिंग्स जो हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं एंड वो जो सेपरेबल पार्ट्स हैं दैट इज द कोन असेंबली एंड कोन असेंबली में क्या होता है, कोन होता है, रोलर्स होते हैं और केज होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, दिस इज द रोलर, ठीक है जी, और आप लोगों ने देखे भी होंगे। देन वी हैव ये आपका जो जो कोन है, ठीक है जी। और केज, केज क्या है, केज के अंदर ये बेयरिंग्स के रोलर्स पड़े होते हैं, ठीक है जी। आपने बुक में पिक्चर्स में भी देखा होगा इन द इंट्रोडक्शन, एंड गो अहेड एंड लुक फॉर सर्च फॉर इट इन ऑन द इंटरनेट टू, यू विल सी अ लॉट ऑफ बेयरिंग्स, ठीक है जी। बड़ी तस्वीरें हर एक तरफ से देखें। और फिर हमारे पास एक कप, कप इज दिस आउटर जो है, ये हमारे पास कप है, राइट। अच्छा, इसमें ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, रोलर्स जो हैं in this case in tapered roller bearings, they are tapered so virtual fx is on the shaft। मतलब इसको देखें, अगर ये आप देखें तो ये tapered है, ये इस तरह है। अगर आप shaft लगाते हैं ना तो it will be like this, ठीक है। तो ये आपका shaft जो है वो ऐसे होगा, ये shaft, right now। tapered टेपर जो है दैट अलाउज फॉर प्योर रोलिंग ऑफ एंगल रोलर्स, ठीक है जी।
अच्छा, ये एंगल ए जो, ये जो डिस्टेंस ए है ना आपके पास इस फिगर में, ये डिस्टेंस ए बेसिकली ये क्या करता है कि इट लोकेट्स द इफेक्टिव एक्सियल लोकेशन फॉर फोर्स एनालिसिस। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स एनालिसिस के लिए। नाउ वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। बाकी ये पार्ट्स जो है ना, आई थिंक यू शुड रीड दिस के इसको, ये मतलब कप फ्रंट और ये सब चीजें, आई वुड नॉट गो इनटू दैट। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट डू वी हैव हियर इज के माउंटिंग। ठीक है जी, माउंटिंग हम इसकी मतलब माउंटिंग डायरेक्शन ऑफ द टेपर्ड रोलर हम कैसे करते हैं। रीड दिस दिस स्लाइड। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास एक कैटलॉग है, एंड दिस कैटलॉग इज अ टिपिकल कैटलॉग डेटा, मतलब एक 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 कैटलॉग लिया गया है जो कि आपको बताता है। If you look over here, so this is the figure. This is the key, I would say, for the dimensions जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में, इस कैटलॉग में। कि ए का तो हमें पता है, हम हमारे पास वर्चुअल मतलब जो एनालिसिस के लिए हम ले रहे इफेक्टिव, ठीक है जी, पोजीशन। ये डी क्या है, डी ए क्या है, डी बी क्या है, सी टी एंड ऑल दीज, मतलब इनर डायामीटर डी, ये सब चीजें जो है ये यहाँ पे शो की गई हैं, एंड द वैल्यूज आर गिवन टू यू। ठीक है जी, दिस इज द बोर, आउटसाइड डायामीटर, विड्थ एंड ऑल दीज। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो इट सेज रेटिंग एट 500 आरपीएम फॉर 3000 आवर्स L10। तो ये आपको L10 दे रहा है कि दैट इज 3000 आवर्स। ठीक है जी, या 500 आरपीएम पे 3000 आवर्स, एंड इट सेज 1 रो रेडियल। तो दिस इज द रेडियल लोड दैट ईच ऑफ दीज बियरिंग्स वुड टेक। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये सबसे पहला बियरिंग जो है, ये इतना लोड जो है एक्सियल लोड बर्दाश्त करेगा, सॉरी रेडियल लोड बर्दाश्त करेगा। अच्छा, इतना एक्सियल लोड बर्दाश्त करेगा, थ्रस्ट लोड बर्दाश्त करेगा। ठीक है जी। अच्छा, के इज अ फैक्टर, और इस के फैक्टर को हम जो है वो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस के व्हाट इज दिस के। ठीक है जी। ओके, सो इन दिस टेबल what we see over here is all these different parameters. Now, K is a factor that we are going to discuss in a moment or two. ठीक है जी। Now, um, well, we know that A is the effective load center as we discussed in the previous slide, right? Acha, now these are the part numbers. The part numbers means that the manufacturer give these these numbers, standard numbers. So when you are asking for this cup and cone, you will state these numbers, ठीक है जी, and you can buy them. The maximum shaft fillet radius, width, and all these parameters are given to you. Now, let's see how are we going to deal with the design of a tapered roller bearing. ठीक है जी। तो देखिए, देयर इज वन थिंग, और वो ये है कि in case of straight roller bearings, your rollers are going to sit like this। ठीक है जी, वो ऐसे होंगे। well, I'll just take advantage of this कि स्ट्रेट रोलर बियरिंग्स, दिस विल बी अ रोलर। ठीक है जी, ऐसे रोलर होगा। नाउ, या बॉल या रोलर कोई भी चीज हो, बट if the load on this roller, if it is sitting like this, and you put a load on this, so this load is going to be purely, if this is radial load, so this radial load has just one component का ना, बल component हो नहीं सकता ना, it does not have any other component का ना, está, bal component está, no. No, अच्छा, sir. what if I put the roller like this, कि इसको मैं ऐसे टेपर कर दूं। ठीक है जी, what would be the consequences, क्या होगा if this is the roller, ऐसे हो,
and now I put load on this like this. Now what will happen? Ji, what is going to happen now? रोटेशन स्टार्ट होगी. Sachal bakegi. Are you guys, do you hear me? यस सर. Ji, Hussam, यस सर. what is going to happen? इस इसके वजह दो से सर 10% यूज हो जाएगा. इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे ना अब. दाची भाई कहने एक ये कंपोनेंट बनेगा, सॉरी, एक ये कंपोनेंट बनेगा. दाची भाई कहना, और एक ये यस सर. कंपोनेंट भी बनेगा नाउ बिकॉज ऑफ दिस एंगल. ठीक है जी. नाउ इफ दैट इज द केस, दिस मींस कि हम जब टेपर्ड रोलर बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारे पास एक एक्सियल लोड प्रोड्यूस करता है, एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है. यानी ये अगर हमारा एक शाफ्ट है ना, लेट्स से अगर ये एक शाफ्ट है ये, ठीक है जी, और इस पे मैंने टेपर्ड रोलर बेयरिंग इस्तेमाल किया ना, तो टेपर्ड रोलर बेयरिंग की वजह से मेरे पास ऐसे एक थ्रस्ट पैदा होगा जो कि मेरे शाफ्ट को पुश करेगा. तो उसको अगर मैं दूसरे किस्म का बेयरिंग लगाता स्ट्रेट तो ये ना होता. तो वो थ्रस्ट लोड जो है ना, इसको हम कहते हैं कि बेयरिंग की वजह से जो थ्रस्ट लोड इंड्यूस हो रहा है ना, उसको हम इंड्यूस्ड या रेडियल लोड जो है, उसकी वजह से जो थ्रस्ट लोड रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहा है रोलर के एंगल्ड होने से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंड्यूस थ्रस्ट लोड कहते हैं. And by formula it is equal to 0.47 times of FR divided by K. Okay, अभी आप लोगों ने देखा वो K जो है ये रेडियल लोड रेटिंग टू थ्रस्ट लोड रेटिंग रेशो है. ठीक है जी. ये हम इस्तेमाल करते हैं. एंड K इज डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक बेयरिंग, और इसको टेबल में दिया गया है जो अभी मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि K क्या है. ठीक है जी. तो ये हमारा क्या है? थ्रस्ट लोड है. ठीक है जी. अच्छा, नाउ ये थ्रस्ट लोड किसकी वजह से है? रेडियल की वजह से. बियरिंग की वजह से. मतलब उसको हमने इस लिए टेपर्ड रखा कि वो एक्सियल लोड को खत्म करे, लेकिन वो खुद भी एक्सियल लोड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है जी. दैट इज पैरासाइट, वी हैव टू लिव विद दैट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखते हैं हम कि हम इसको कैसे देखते हैं. कि देखें, एक बात है, और वो ये है कि यहाँ पे हम इक्विवेलेंट लोड जो है ना, उसको कैसे डिफाइन करेंगे. अब इक्विवेलेंट लोड इज इक्वल टू वही फार्मूला जो हमने निकाला था, एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए. लेकिन इसके लिए ये नंबर्स हमें नोन है. वो टेबल में हम x1 y1 देखते थे ना, टिमकन्स कहता है जो मैन्युफैक्चरर कि x की वैल्यू इज 0.4 एंड y की वैल्यू जो है वो k की बराबर है, जो अभी हमने टेबल में देखा. तो Fe क्या होगा? इक्विवेलेंट लोड क्या होगा? 0.4 Fr plus K times Fa. This will be the equivalent load now. ठीक है जी. So Fa is the net axial load carried by the bearing. Now what is Fa? It is the net axial load. Net axial load का मतलब ये है कि जो bearing खुद प्रोड्यूस कर रहा है और जो एक्सटर्नल लोड है, दोनों. ठीक है जी. एक्सटर्नल प्लस जो bearing प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है जी. तो वो Fa. और एफ आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो इंड्यूस्ड है, प्लस एफ ए हमें बियरिंग पे जो मिलेगा. तो एफ ए ऑफ मतलब एफ ए जो हमें दिया गया हो प्रॉब्लम में, प्लस एफ दूसरा क्या है, एफ आई, तो वो हमारे पास टोटल एफ ए बन जाएगा. नाउ ओनली, अच्छा एक बात याद रखिए, जब भी हम बियरिंग्स किसी शाफ्ट पे लगाते हैं तो हमेशा याद रखें कि वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ द एक्सियल लोड बाय वन बियरिंग. हाँ, आप एक बियरिंग ऐसा रखेंगे कि वो आपका थ्रस्ट लोड जो है उसको
खत्म करे, उसके मतलब बेयरिंग क्या करता है, सपोर्ट करता है ना, कि आपके एक्सियल लोड को वो सपोर्ट करे। तो दिस इज व्हाट वी वुड डू, कि हम एक बियरिंग रखेंगे कि वो थ्रस्ट लोड को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बियरिंग आपका थ्रस्ट लोड ले रहा है? इट इज वेरी इजी, हम डिटरमिन करेंगे। कैसे डिटरमिन करेंगे? देखिए, लेट्स से हमारे पास ये दो केसेस हैं। इन दो केसेस में आप देखें तो ये हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है जी, और ये शाफ्ट है, ये पिंक जो है ये शाफ्ट है। लेट्स से कि हमारे पास इस डायरेक्शन में ये हमारे पास एफ ए है, इक्विवेलेंट लोड हमारे पास, ये एक्सियल इक्विवेलेंट लोड हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो ये हमने दो टेपर्ड बियरिंग्स लगाए हैं ना, ठीक है जी। अच्छा, इसमें से अगर हम देखें और हम इस फ्रेम को फिक्स किया हुआ है, ये नहीं मूव हो सकता, तो व्हाट हैपेंस जब हम इसको ऐसे पुश करते हैं तो क्या होगा? ये बियरिंग जो है इसको क्या होगा, बियरिंग बी को क्या होगा, ये एक्सटेंड होगा ना, दे गट सीधा से ये एक्सपेंड होगा। और इसको क्या होगा, मतलब जब हम ये लोड अप्लाई करते हैं ये स्क्वीज हो जाएगा, ये फ्रेम नहीं मूव हो सकता, तो ये क्या होगा, ये बियरिंग किस चीज में होगा, कंप्रेशन में होगा, और ये बिल्कुल। बियरिंग एक्सटेंशन में होगा। जो बियरिंग आपका कंप्रेशन में होगा ना, दैट इज टेकिंग योर एक्सियल लोड। हाँ, उस बियरिंग को हम डेजिग्नेट करते हैं एक्सियल लोड के लिए, और उस बियरिंग को हम